ऐकं झालं माईक मी दाखवलं. अरे कसं लावूया? मैम क्लासेस कब चालू होएगी? Very good evening, everyone. Today we are starting with the first session of scholarship grade 8. Okay, my name is Anam, and I have done my B.Ed, and I have 13 years of teaching experience, and I have been teaching scholarship students as well. Today is our first session, first VTC session for grade 8. We'll see about the questions. What type of question will come in the exam based on the like vocabulary based questions will come. Second, picture or image based, grammar based, and reading comprehension based. Means your entire question paper will be based on these four
पैटर्न और 4 क्वेश्चंस टाइप, ठीक है। उसमें क्या है, आपका वोकैबुलरी बेस्ड होता है, ग्रामर है, पिक्चर और इमेज बेस्ड है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होता है। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है वो इन चारों पर ही बेस्ड होंगे। सो वी हैव टू थरो विद दिस ईच एंड एवरी टॉपिक। नाउ फर्स्ट विल सी अबाउट द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, एब्रिविएशन और निमोनिक्स हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म्स, एनिमल रिलेटेड वर्ड्स आ सकते हैं, होमोफोन्स है, देन नॉन इंग्लिश वर्ड्स और लोन वर्ड्स, लास्ट इज वर्ड बेस्ड पजल्स। ओके, नाउ विल सी द वेटेज, ठीक है। अभी हमने देखा कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम वेटेज देख रहे हैं कि इस वोकैबुलरी को इंग्लिश स्कॉलरशिप ग्रेड 8 के लिए कितना वेटेज दिया है। तो ये 16% वेटेज है, मतलब आपके टोटल क्वेश्चन पेपर का 16% वेटेज जो है वोकैबुलरी को दिया है। इसमें जो टॉपिक्स है, सब यूनिट्स, राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज, राइटिंग कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अपोजिट एंड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, word formation, homophones, phrases, write one word substitute for the clue provided, guessing the meaning of word. Now next is word puzzle riddles है, वो आपको 4% questions इसमें से आ सकते हैं। Today we are doing few questions or few topics only we are seeing on this slide. Okay, so if we are doing these topics today, so to thorough with the topic before, we should get some knowledge about the words, ठीक है। वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ऑलरेडी वी हैव डन इन द ग्रेड 5, हमने किया है, ग्रेड 5 की स्कॉलरशिप में भी किया है और हम करते आ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स का रोल डिजाइन करता है और डिसाइड करता है ना सेंटेंस, ठीक है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वी नो, सो बिफोर डूइंग दिस टॉपिक, लैडर, वर्ड लैडर्स है, वर्ड वेब है, वर्ड रजिस्टर है, ठीक है, ऐसे कुछ हम टॉपिक सर्च करने वाले, बट उसके पहले हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को थरो करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। Today's focus, parts of speech, ठीक है। We all know 8 parts of speech है, okay। Give me the answers in the chat box कि what is meant by noun, verb, adjective और one example of each quickly, or else you can type the examples of each parts of speech. Okay, very good, Anshu, very good. Naming words, okay, give one example, noun, verb, adjective, adverb, क्या है, what is noun, everyone knows this, name of a person, place, animal, thing, any idea, yes. Pronoun, define, we can use instead of noun, very good Anshu, okay। See, verb क्या है, verb action word, adjective, okay, thank you, place, London, ठीक है, चलो। okay, adjective, a word which describes a noun, quality word जो noun को describe करता है, we can say adjective, ठीक है। adverb जो verb को modify करता है sentence में, conjunction joining words जो दो sentences को connect, दो sentence या दो phrases को, दो words को connect करता है, ठीक है। फिर है interjection, interjection a word which is used to express the sudden feelings or emotions, wow, ouch, like that. Preposition, a word which shows the position or direction of a object or thing. Pronoun, already we have done it, instead of noun we can use it. So these are the all 8 parts of speech. यहाँ पर इसका एक छोटा सा समरी एग्जाम्पल्स के साथ दिया है, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस स्लाइड। noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection.
Now I'm going on to the next slide. Okay, so far we have done parts of speech, है ना? Parts of speech में हमने noun है, pronoun है, verb है, adverb है, ठीक है? Adjective है, conjunction है, interjection है. हमने इतने सारे parts of speech revise किए. अब based on that we are going to solve the questions. So our first question is, the children ran quickly to the park. What part of speech is quickly? Now please give the answer. We have four options. Option A, adjective, B, preposition, C, adverb, and D, pronoun. Sai Baba Pad, adverb, Nandini, nahi. Shivam, pronoun. Now 3, adverb. Okay, now see, quickly is an adverb over here. So those who are giving the C option or option third, adverb is a right answer. ठीक है, यहाँ पे जो quickly है, that is a adverb in the given sentence. C, adverb, right option. Now going on to the next slide. Now see here, sentence. Besides studying, she also enjoys traveling. What part of speech is besides? So we have four options, four alternative: conjunction, second preposition, third verb, and fourth adverb. Now give me the answer. Harendra Kumar, very good. Janvi, good. Sajia Ansari, very good. Okay, so our second option, preposition, is a right answer. Now student, besides means in addition to, apart from this. और एक होता है beside, है ना? BESIDE, beside. दोनों वर्ड्स के मीनिंग में जो है वो डिफरेंस है, अलग है. beside मतलब किसी चीज के like beside, next to something, that is beside. और besides means in addition, इसके अलावा. okay, so यहाँ पर जो है besides studying she also enjoys traveling. तो वो स्टडी के साथ साथ क्या है, वो ट्रैवलिंग भी इंजॉय करती है. तो ये besides also we can use as a preposition, और beside तो preposition है. Okay, now next question. Choose the correct connector. Complete. Okay, complete. The sentence is, the athlete trained hard that she could win the race. So we have four options: but, so, or, and the last option is and. ठीक है, give me the answers in the chat box. क्या होगा? The athlete trained hard that he could win the race. बट नहीं, बट हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, बट नहीं आएगा. यहाँ पे रीजन है, द एथलेट ट्रेन्ड हार्ड डैश ही कुड विन द रेस. यस, वेरी गुड. जानवी, Sajia, very good. So here your second option B is the correct answer. So is the subordinating conjunction of result. Now going on to the next slide. Now see, to summarize this topic, so far we have seen parts of speech, है ना, हमने 8 parts of speech को revise किया. Now one question has been displayed on your screen. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में से आप आइडेंटिफाई करोगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज बीन गिवन ओवर हियर. ठीक है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है और चैट बॉक्स में आंसर्स भेजने हैं. आपको इसमें से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया है. गिविंग यू 2 minutes टाइम क्विकली. वाओ, द लिटिल बॉय ran quickly through the park and jumped over a bench. First tell me the noun. Which noun has been mentioned in this question? Boy and park. Okay, bench भी है ना. The little boy है, park है और bench है. So this is your noun. Very good. Now next, tell me about verb. Which verb?
ran. One more is there. Very good. Janvi, good. No, Renu, bench is a noun है, हम verb की बात कर रहे हैं. Jumped. Very good. So I got the two answers, jump and ran. So we'll see, that is verb. Very good. Now next is adverb. Send the answers in the chat box. Adverb, quickly. Okay. ओ यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है. एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर आपका इस सेंटेंस में? लिटिल. Quickly is the adverb. Okay. Now next we have seen 4: noun, verb, adjective, adverb. Now conjunction. Conjunction is there? Any conjunction? Quickly send the answers in the chat box. Yes, very good, Sai Baba Pat. And has been given, that is a conjunction. Sajia Ansari, Janvi, very good. Oh, यहाँ पे preposition था. The preposition has been given through and over. Now the conjunction and. Now last. So we have seen the 6. Interjection. Wow. Okay. Which parts of speech not given in this? We have not covered in this question. Which parts of speech? Can you name it? Quickly. 7 parts of speech we have seen, we have revised it. 6 तो आपके यहाँ पे display हो रहा है. Which one is not there? Pronoun. Yes, very good. Pronoun is not there in this sentence. Okay. Okay. Now next. Now it's time about gaining some knowledge about idioms, है ना? Idioms के questions भी आते हैं scholarship में आपको. Idioms क्या है? ऐसे words होते हैं जिसके word से आप उसका meaning identify नहीं कर सकते हो idioms में. Now choose the correct meaning of the idiom. A blessing in disguise. So we have 4 options here. Gift from a stranger. A problem that stays hidden. A good thing that first seemed bad. A lucky guess. Now tell me the answer. B. Nandini. No. Sai Baba C. Adarsh Pandey C. Okay. Then Renu Soni. Okay. Thank you so much for your responses. So quickly you're responding. Thank you everyone. C option is the correct option here. A good thing that first seemed bad. ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है पहले जो हमें लगता है कि ये गलत हुआ, but later on उसका जो result होता है that will be in our favor. I'm giving one sentence example. Losing that job was a blessing in disguise. Afterwards I started my own business. ठीक है, तो जो जॉब मैंने खोया वो मुझे पहले थोड़ा सा बुरा लगा, बट मैंने क्या किया, उसके बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो वो क्या था? ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज. कि पहले जो होता है वो थोड़ा बुरा दिखाई देता है, बट उसका रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में होता है. ठीक है. शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी गुड. हरे राम, वेरी गुड. साजिया. ओके, करेक्ट आंसर. Now next we have a question about proverbs. Proverbs क्या है? It's a piece of advice. ठीक है, जो हम quotes क्लासरूम में बोर्ड पर भी लिखते हैं, है ना? वो क्या है? Piece of advice होता है, suggestions होते हैं. That is proverbs. So choose the correct meaning of the proverb. Make hay while the sun shines. ठीक है. So you have 4 options. You have to pick the correct answer or correct meaning for this proverb. First is grow crops in summer, waste time in sunlight. Third is take rest when the weather is good, take advantage of a good opportunity while it lasts. So what would be the correct answer? Very good. Almost everybody is giving the right answer. So you have quite thorough understanding about the proverb. Good. ओके. टेक एडवांटेज ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी व्हाइल इट लास्ट. मतलब कि जब तक कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जब तक कि वो अवेलेबल है,
तो उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले ले, उस सिचुएशन का फायदा ले ले, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहेगा. Now, vocabulary based question, we'll see. Okay, इस स्लाइड के हम we will see few topics. I'm not covering all the topics, few topics. Okay, now the first question is, choose two correct alternatives which is related with nature. ठीक है, आपको ये जो पजल दिया है इसमें से दो करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने हैं जो नेचर से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, रिलेटेड विथ नेचर. तो वी हैव 4 ऑप्शंस. फर्स्ट इज मून, स्टार, थर्ड वन ट्री एंड फोर्थ इज बर्ड. So look at this puzzle, the boxes which has been displayed on the screen, and identify it. Moon, yes. Very tree. Okay. Okay, good. Very good. We'll see the answer. Already you said moon and you said one more tree. Very good. Very right. Okay. Now, so in this way, you can write the select the correct answers during the exams as well. Now, the second question: choose the correct alternative from the following to complete crossword puzzle. अब यहाँ पे एक आपको puzzle दिया है crossword. इसको complete करने के लिए we have 4 options and in that letter has been given. ठीक है, alphabet दिया है. आपको वो alphabet वहाँ पर अगर fit होते हैं तो वो एक correct word आपको देगा. So 2 वेकेंट प्लेसेस है, 2 बॉक्सेस वेकेंट है, ब्लैंक है. फर्स्ट है OE, सेकेंड है UA, थर्ड है IG एंड फोर्थ ऑप्शन PB. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग OE. ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पे हम O ऐड करते हैं और उसके नीचे E, सो इट विल बी फ्लावर. एंड यहाँ पर आप देखोगे तो फियर. सो योर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, yes, very good, very nice. Adarsh, Sajia, Zubair, Shivam, very nice. Thank you for the responses. Now OE, first option is the right option. Now this is the third question, I guess, related to this topic. Choose the correct alternative from the following to complete the puzzle. Again, only one letter has been given here. आपको एक ही अल्फाबेट दिया है, वो अल्फाबेट आपको ये दोनों वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन 1 O है, ऑप्शन 2 N, ऑप्शन 3 P और ऑप्शन 4 E. Many of you are saying option 4 E. Very good. ठीक है, चलो देखते हैं. यहाँ पे अगर E ऐड किया तो इट विल बिकम निडल, और यहाँ पे E ऐड किया तो इट बिकम्स टेस्ट. राइट? So your answer is correct. Thank you. Now going on to the next slide. Now word ladder. Now it's time to think. क्या है ये word ladder? किया है आपने पहले? और how many steps are needed to go from the word? इसमें 2 words दिए होते हैं आपको, उसमें आप you can change one letter at a time. आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट को चेंज कर सकते हो. ठीक है, सो विल सी. बोल्ड टू होप. अगर आपको बोल्ड से होप कन्वर्ट करना है, बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? गिव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स क्विकली. बोल्ड से होप, तो फर्स्ट आप बोल्ड है, कोई एक लेटर यहाँ से एलिमिनेट करके होप के अल्फाबेट उसमें ऐड करोगे 1 by 1. आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही लेटर चेंज कर सकते हो, एक ही अल्फाबेट चेंज कर सकते हो. सो 3 लेटर विल चेंज. यस, राइट. चलो देखते हैं फर्स्ट क्या है. बोल्ड है, देखो बोल्ड था, बोल्ड से नेक्स्ट क्या है, होल्ड कर दिया हमने. बी की जगह भी रिप्लेस्ड H, so it becomes hold. Then the third steps, what we have eliminated D and we put E. D की जगह हमने क्या ले लिया, E, तो it becomes whole.
अब हमारे पास क्या है, HOE, नाउ P इज नॉट देयर, सो L को एलिमिनेट करके हम P ऐड कर देंगे, तो फाइनल वर्ड इट बिकम्स होप. So in this way you can do it: bold, hold, whole and hope. So it's a 3 steps. Now going on to the next question, how to go from tap to car. It's very simple and easy. सिर्फ दो ही steps होंगे. I'm telling yes. चलो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मुझे आंसर शेयर करो प्लीज. Yes, 2 letters. Yes, tap and car है, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें. क्या कैसे करोगे आप? Write the word. Steps नहीं, write the word. First, what you're going to eliminate or you're adding. See, आप टैप का T हटाकर वहां पे आप C ऐड कर सकते हो, it becomes cap. ओके, एक स्टेप हो गया. फिर आपको क्या चाहिए, लास्ट वर्ड में आपका क्या है, कार है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है. तो आप यहाँ पे आपके पास में P है, P को आप एलिमिनेट करके क्या करोगे, कैट कैसे आएगा, P को आप एलिमिनेट करके R कर सकते हो. हाँ, तो फर्स्ट वर्ड जो आपका जाएगा, फर्स्ट स्टेप कैप, देन द नेक्स्ट वन इज सी, टैप. इन बिटवीन क्या होगा आपका, कैप. टी से आप सी को फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर रहे हो, कैप है. देन आप रिप्लेस करोगे पी विथ आर स्टेप 2 में. सो आपका ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है 1 + 1 2, जो आपके ऑलरेडी आई गॉट द आंसर्स. हाँ, वेरी गुड. ओके, नाउ this I want you to give the answer in the chat box. How many steps will you need to make cold? Cold को आप अगर warm बनाते हो तो आप कितने steps करोगे? See, cold है. Quickly, next word क्या होगा? 4 steps. Okay. See, cold था. सो फर्स्ट स्टेप से हमने क्या किया, आर की जगह वी रिप्लेस एल विथ आर. देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी रिप्लेस ओ विथ ए, सो इट्स कॉर्ड. देन कार्ड, अभी हमारे पास ARD है, तो हम सी की जगह रिप्लेस करेंगे W, सो इट विल बी वॉर्ड. देन द फाइनल वर्ड इज, हम D को एलिमिनेट करके विल रिप्लेस विथ M, सो इट विल बी वॉर्म. इन दिस वे यू कैन डू इट. यस, 4 स्टेप्स. वेरी गुड. Now, I hope you have understood this word ladder. Now, word register. Words that belongs to a common group or are related with each other. Word register means connected word, related word. Suppose I'm giving you example, write the word register of classroom. ठीक है? क्लासरूम का वर्ड रजिस्टर बोला तो आप कितने सारी चीजें क्लासरूम से देख सकते हो. बेंचेस है, स्टूडेंट है, टीचर है, बुक्स है, बैग है, स्टेशनरी है, तो वो सारी चीजें वर्ड रजिस्टर में आती है. रिलेटेड वर्ड. नाउ सी हियर, बुक्स, पेन, इरेजर, नोट्स एंड क्वेश्चन मार्क. सो यू हैव 4 ऑप्शंस. आप उसमें क्या ऐड करोगे वर्ड रजिस्टर के लिए? लेटर. And yes, very good. मैंने example दिया. Good, good. Yes. Now we'll focus on this question. We have 4 options: sports, school bag, kitchen, animals. क्या होगा इसमें? Yes. Very good, Nandini. Nice. Yes, your option 2 is the right answer. Correct answer, school bag. That is a word register here. Books, pens, eraser, notes and school bag. Now see here the next question. Choose one option which is not related to the following diagram. एक आपको diagram दिया है, doctors treating human. ठीक है, वहाँ पे 4 types के doctors है treating humans, वो आपको बताना है. Sorry, यहाँ पे आपको देना है choose one option which is not related to the following डायग्राम. डॉक्टर ट्रीटिंग ह्यूमंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक है डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट है. न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स हु ट्रीट्स द डिजीज अबाउट द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज स्पाइन, सॉरी. एंड पेडियाट्रिशियन क्या होता है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट. वेटरिनेरियन किसे कहते हैं? एनिमल डॉक्टर.
कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, जो हार्ट डिजीज और हार्ट एबनॉर्मलिटीज को ठीक करते हैं. यस, वेरी गुड. ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये वेटरिनेरियन मीन्स एनिमल डॉक्टर है, so they are treating animals or pets. Now next is word web. Word webs are formed from word register. We'll see. देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड वेब दिया है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसमें आप कौन सा, ये किस वर्ड के कनेक्टेड और रिलेटेड वर्ड है, दैट यू हैव टू राइट. सो यू हैव 4 ऑप्शंस. क्या है ये? टाइप्स ऑफ वर्ब्स है क्या, टेंसेज है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, क्या है ये? So, very good. Rishita, Nandini, Zubair. Very nice. So, the second option is the correct option. This is the words related to tenses. ये types of tenses ही है ना, past है, present है और future है. I hope you are understanding this. Moving on to the next question. Next question is choose two correct alternative to complete web. यहाँ पे आपको एक वेब डायग्राम दिया है, म्यूजिक रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखने हैं. ठीक है, ऑलरेडी 4 दिए हैं यहाँ पर और आपके पास 4 ऑप्शंस हैज बीन गिवन. फर्स्ट इज एयर, टेम्पो, इनवाइट, रिदम. सो व्हाट वुड, कौन से आंसर्स आएंगे यहाँ पे, कौन से ऑप्शंस आएंगे? वेरी गुड. सेकेंड एंड फोर्थ, टेम्पो एंड रिदम. This would be the correct answer for this question. Okay. Yes. Thank you, everyone. Now next. Now see, I want you to go through this small advertisement which has been given over here, displaying on your slide. यहाँ पे देखो और अच्छे से गिविंग यू 1 minute टाइम. इसको आप पहले गो थ्रू करो, रीड करो कि क्या है ये. The advertisement talks about what? Then we'll solve the questions. देखो, सामी फोन है, समर सरप्राइज है. सो ये एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा है? बाय अ सामी फोन एंड गेट अ चांस टू विन अमेजिंग प्राइजेस. तो यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप्स के फोन्स दिया है कि आप वो बाय करते हो तो फर्स्ट पे क्या है? बम्पर प्राइस 42 इंचेस टीवी है. अगर आपने सामी A35 बाई किया तो मेगा प्राइस 52 इंचेस टीवी है. देन अगर आपने A40 फोन बाई किया उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का, तो आपको सुपर प्राइस 54 इंचेस टीवी है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैज बीन गिवन. ऑफर दिया है आपको यहाँ पे और उसके बाद में लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, ये सिटीज में ये ऑफर्स अवेलेबल है. और उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है. ठीक है, I hope you have gone through this. You read this. Now I'm reading the question. Find the wrong word which is not mentioned in the advertisement in the following web diagram. ठीक है, ऑफर है. ये जो ऑफर था वो किस सिटीज में अवेलेबल है? मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद. तो which is not mentioned in the advertisement, that you have to identify it. तो you have 4 options. औरंगाबाद है, then मुंबई, पुणे, नागपुर. Before completing my question, I got the answers from my students. Very good. Now, first one A. First one, Aurangabad is the suitable or correct answer for this question. कर लेते हैं quickly. We so far क्या देखा हमने? Word ladder, ठीक है? Word register देखा. Then word web also we have seen. अभी कुछ और आगे टॉपिक्स कवर करते हैं. Sentence transformation. Okay, voice and speech, types of sentences, degree of comparison. ठीक है, we'll see these topics. फर्स्ट देखो, आपका जो ग्रामर का वेटेज है वो है 16%. नाउ स्टूडेंट, आपको ग्रामर में यू नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. आपको बहुत प्रैक्टिस करना है क्योंकि
बहुत ही कम टाइम में आपको जो है वो रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सिलेक्ट करना होता है। भले हमें यहाँ पे आंसर लिखना नहीं होता है, बट वहाँ पे बहुत ऐसे ट्विस्ट करके भी ऑप्शंस दिए होते हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्विकली, सो दैट नीड्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आप ग्रामर टॉपिक्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आपको 16% आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के वो इसमें से ही आते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैज बीन गिवन विच यू कैन गो थ्रू, उसमें से कुछ हम कवर करेंगे और रिमेनिंग जो रहेगा वो थ्रू आउट द ईयर विल कवर इट। नाउ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, इन स्कॉलरशिप पेपर मेनी ट्रिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू, यहाँ पे ये जो है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये सारे आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, assertive to interrogative और vice versa, positive to negative आ सकता है और vice versa, simple compound complex, degree of comparison और question tag। इसमें से कुछ जो टॉपिक्स है वो हायर लेवल के लिए है। ठीक है, हायर लेवल मीन्स के जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता है ना, इसमें से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जो उनके लिए है। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो थर्ड लैंग्वेज जिसका इंग्लिश है वो उनके लिए। जहां पे हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे तो आई विल इन्फॉर्म यू। नाउ सी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव, क्या है एक्टिव वॉइस? सी, व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश और व्हेन वी राइट, तो वी फॉलो अ स्ट्रक्चर। हमारे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है ना, हम ऐसे ही कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं बोलते। सब्जेक्ट्स कम्स फर्स्ट, वी ऑलवेज स्टार्ट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट, फिर हमारा एक्शन वर्ड होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। वी फॉलो दिस, तो दैट इज एक्टिव वॉइस, जहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं? सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट ने ये काम किया। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स हु परफॉर्म द एक्शन। और पैसिव में कैसा है, इसका अपोजिट है। यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट पर, किस चीज, मतलब सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, नमन किक द बॉल। ठीक है, नमन ने जो है वो बॉल किक किया, सॉरी, Naman kicked the ball. So यहाँ पर I am focusing on Naman. What Naman is doing, he is kicking the ball. ठीक है, तो ये क्या है, मेरा active voice है। If I say the ball was kicked by Naman, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, object पे focus किया। My subject becomes the receiver of an action. मेरा जो सब्जेक्ट था नमन, वो क्या हो गया, इट बिकम्स द पैसिव, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सो हियर आई एम फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज पैसिव वॉइस। So very simple rule from active to passive. Very simple rule converting from active to passive, कि हम एक्टिव में सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, हमारा वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है। और अकॉर्डिंग टू द टेंस वी आर एडिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है विच आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट। Now next, okay, the first question is, choose the correct alternative of active voice for the following statement. My father was given a jeep by the government. ये क्वेश्चन आपको दिया है और ये पैसिव वॉइस में है। इसका आपका एक्टिव वॉइस आपको सिलेक्ट करना है राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट हम देखेंगे हम कैसे जल्दी से क्विकली वी कैन सॉल्व दिस। तो पहले हमें क्या करना है, सॉरी, या जो रॉन्ग आंसर्स है हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, माय फादर वाज गिवन अ जीप, यहाँ पे वाज गिवन दिया है, इट मींस कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, ये वाज गिवन पास्ट टेंस है, तो देखो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ना, द गवर्नमेंट विल गिव अ जीप टू माय फादर, ये एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट दिया है वो पास्ट टेंस है, तो फ्यूचर का तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी फोर्थ चला गया। उसके बाद में द गवर्नमेंट गिवन अ जीप टू माय फादर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि गिवन नहीं होता, कहीं पर भी हम थर्ड फॉर्म के साथ हैज और हैव लगाते हैं परफेक्ट टेंस में। So already it is wrong. So आपके ये दो थर्ड एंड फोर्थ, so you have two statement only, two options only, and you have to select any one. So the government gave a jeep to my father, the government gave a jeep to my father. तो यहाँ पे देखो give जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में वो प्रेजेंट है। yes, very true, very good. तो जो फर्स्ट है वो प्रेजेंट टेंस है, तो हमारा पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट में हम एक्टिव नहीं हो सकता। टेंस विल नॉट चेंज, दैट रिमेन सेम।
अगर आपका एक्टिव है तो भी सेम ही टेंस होता है, पैसिव है तो भी सेम होता है। बट एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? हम एक्टिव में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पैसिव में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। और हम पैसिव में ऑलवेज वी टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and along with the third form of the verb we add few helping verb according to the tense, और एक preposition add होता है mostly by. Yes, very good. The second no, yes, second one is the correct answer. The government gave a jeep to my father. क्योंकि देखो my father यहाँ पे क्या है? Object है ना. The government has given. Action किसका था? Government का था. तो that becomes here ऑब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, फादर लास्ट में आएगा, तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट इक्विवेलेंट इन पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस Who is creating this mess? ये क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस। By whom is this mess being created? Who has created this mess? By whom has this mess been created? By whom this mess was being created? अभी इतना confused नहीं होना है आपको इस क्वेश्चन में। क्या है? Who is creating this mess? तो पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ये एक्टिव है, ऐसे पैसिव करना है, is creating है, तो हम यहाँ पे टेंस देखते हैं। इज क्रिएटिंग क्या हो जाता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, है ना। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव में है तो आप पैसिव में क्या लगाओगे? क्रिएटिंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म क्रिएटेड, और आईएनजी हटा के आपका आ जाएगा बीइंग क्रिएटेड। तो आप देखो यहाँ पे जितने आपके बीइंग क्रिएटेड वाले 2 ऑप्शंस हैं ना, आप उस पर ही फोकस करो, तो आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, Who has created this mess भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वहां पे हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम क्रिएटेड के साथ बीइंग लगाएंगे आईएनजी। तो सेकंड नहीं, सॉरी स्टूडेंट, सेकंड इज अ रॉन्ग आंसर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका। Who has created this mess is a wrong option, ये ऑलरेडी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, और आपका जो बीन क्रिएटेड है, सेकेंड एंड बीन हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, तो आपका सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी चला गया। नाउ यू हैव ओनली 2, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड और बाय हुम दिस मेस वाज बीइंग क्रिएटेड। अभी देखो यहाँ पे टेंस का डिफरेंस है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इज क्रिएटिंग है, इज बीइंग क्रिएटेड आना चाहिए यहाँ पर, तो आपका वाज बीइंग क्रिएटेड, अगेन फोर्थ वन इज रॉन्ग, सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, समझा। आपको पहले रॉन्ग आंसर्स एलिमिनेट कर दो तो आपके लिए इजी हो जाएगा राइट आंसर तक पहुंचना। आप चारों पे फोकस करोगे सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो आपको देखना है, क्विकली देखो कि टेंस क्या है, वर्ब क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आपका आंसर की तरफ आप बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे इज क्रिएटिंग था तो हमें पता है कि क्रिएटिंग है तो हम क्रिएटेड लेंगे, इज है आईएनजी है तो इज बीइंग क्रिएटेड आना चाहिए। बस वो ध्यान में रख के अगर आप करोगे ना वर्ब फॉर्म को, सो इट विल बी easier for you to get the right answer. Very good. I'm moving on to the next slide. Now the next topic, direct and indirect speech. है ना? Direct and indirect speech is what? If I want to convey the message, मुझे एक message convey करना है, but वो message, yes, जैसा as it is किसी ने कहा है, मैं वो as it is message अगर convey कर रही हूँ तो it is direct speech, जो always double inverted comma में होता है। इनडायरेक्ट क्या है? सेम मैसेज, मीनिंग विल नॉट चेंज, ओनली हम उसके वर्ड्स कुछ आगे पीछे करते हैं और सेम मैसेज कन्वे करते हैं बट इन अ ओन वर्ड्स, सो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब भी आप करो ना तो आपको एक स्टेप पीछे जाना है। सपोज आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट, तो आपका इनडायरेक्ट सिंपल पास्ट में होता है। क्यों पता है? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जो है वो ऑलरेडी हो गया है। जब किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट व्हेन यू आर कन्वेइंग टू द अदर पर्सन, सो दैट ऑलवेज दैट हैज बीन डन। ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको आप कन्वे कर रहे हो, तो आप ऑलवेज क्या करोगे? एक स्टेप पीछे जाओगे। अगर सिंपल प्रेजेंट में है डायरेक्ट तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में।
इन दिस वे सेम, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डायरेक्ट है तो वहां पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब सिंपल पास्ट में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच दिया है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच करते हो पास्ट परफेक्ट टेंस में। याद रखो, सिंपल पास्ट अगर आपका डायरेक्ट स्पीच है तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप पास्ट परफेक्ट स्पीच पे कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। और अगर पास्ट कंटिन्यूस में आपका डायरेक्ट स्पीच दिया है तो आप इनडायरेक्ट में क्या करते हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करोगे। ठीक है, ये आगे भी कुछ है जो आप गो थ्रू कीजिए। जहाँ पे अगर विल होगा तो हम वहाँ पे वुड लगाते हैं, और अगर वुड है तो वो सेम होता है, नो चेंजेस इन दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट विच आई हैड एक्सप्लेन, वो उसकी समरी है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस। Okay. Now next is next question is choose the correct alternative for indirect speech। देखो अभी यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपके जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, एक तो आपका दो सेंटेंसेस को जो कनेक्ट करता है कनेक्टिव वर्ड्स, वो आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारे पास भी यहाँ 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ना, असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, देन एक्सक्लेमेटरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट connective words will change. We are often, they answered. This is assertive type of question। ठीक है, यहाँ पे we are often, अभी मैंने क्या कहा कि जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में होना चाहिए, राइट। तो दे आंसर्ड के बाद में एज दिस इज असर्टिव, तो आप दैट से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, आप सिर्फ पास्ट के ऑप्शंस को देखो। सो यू हैव ओनली 2 पास्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, दे आंसर्ड दे वर ऑफेंस, एंड दे आंसर्ड दैट दे वर ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला जो ऑप्शन है ना, दोनों ही वर है, पास्ट में है, बट जो फर्स्ट है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वहां पे कोई कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं किया है दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्ट करने के लिए दैट यूज नहीं किया है, क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट होना चाहिए। तो योर राइट आंसर इज सेकेंड वन। वेरी गुड, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। They answered that they were orphans. Now student feedback forms link has been shared on the chat box, so please fill it. देखो, they were. Now next question is choose the option from the following that contains correct reported speech। ठीक है, आपको यहाँ पे रिपोर्टेड वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट कुछ आपको होमवर्क लिंक्स ऑल्सो इज देयर, टेस्ट लिंक है, वो भी लिंक आप क्लिक कीजिए उस लिंक पर, और यू विल गेट द प्रैक्टिस, यू विल गेट द क्वेश्चंस, सो योर कॉन्सेप्ट और योर नॉलेज अबाउट द टॉपिक विल बी थरो। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। जो लिंक्स आपके चैट बॉक्स में शेयर हो रहे हैं, टेस्ट लिंक्स है, उसको क्लिक कीजिए और वो होमवर्क कीजिए। देन प्लस फीडबैक फॉर्म लिंक है, प्लीज फिल इट। Now this question is choose the option from the following that contains correct reported speech। John said, that's the job you are offering me। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो that's the job you are offering me, ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तो पास्ट कंटिन्यूस में करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस के ऑप्शंस पर फोकस करो। क्या है आपके पास में, ही इज ऑफर्ड नहीं आएगा, ही वॉज, John asked whether that was the job he was offered। that हम जो है ना वो ऑलवेज हम असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है आपका। विच विल बी द करेक्ट वन, टेल मी। क्विकली, फर्स्ट वन, John asked whether that was the job he was offered। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
सेकेंड नो, सेकेंड इज द रॉन्ग. सेकेंड कैसे? जॉन आस्क वेदर दैट इज द जॉब ही ऑफर्ड. आपका जो है वो प्रेजेंट टेंस में था, तो आप जब कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आप यू विल गो वन स्टेप बैक. नाउ नेक्स्ट, degree of comparison, positive, comparative, and one more. Which one? Superlative. Yes. So now see this question. Choose one incorrect alternative from the given option. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको wrong option select करना है. Good, better, best. Second option, late, later, latest, tall, more taller, most tall, and thin, thinner, thinnest. Which would be? Yes, very good. Third one is the wrong answer, क्योंकि tall, more tall, most tall नहीं होता है. tall, taller, tallest होगा. ठीक है, more और most आप लगा सकते हो. beautiful तो आएगा more beautiful, most beautiful. Now see this. Fill in the blank by using comparative form of the verb. My car is quite slow and I want to get a dash fast one. So which one will be the correct? First one is faster, second is fastest, and the third one is more fast and most fast. ये तो हो ही नहीं सकता, more and most fast wrong है. आपके पास दो ऑप्शन है, faster and fastest. फास्टर आप कंपैरेटिव में यूज करते हो, फास्टेस्ट आप सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हो. तो यहाँ पे कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स. माय कार इज क्वाइट स्लो, आई वांट टू गेट अ फास्टर वन. सो योर ऑप्शन 1. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, अभी ये जो है इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है, फिर नंबर ऑफ वर्ब्स एंड कंजंक्शंस के बेसिस पे किया है. पंक्चुएशन मार्क्स पर आपको कौन से है? 4 टाइप के, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड इंटरोगेटिव. ठीक है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वर्ब एंड कंजंक्शन बेसिस क्या है? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही है, स्टेटमेंट होता है. इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ. इम्पेरेटिव जहाँ पे आप कमांड है, ऑर्डर है और रिक्वेस्ट है, ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव होते हैं. इंटरोगेटिव ऑलवेज एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछते हो, इंक्वायरी करते हो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेशन होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हियर सी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. Read the sentence and recognize its type. Choose the correct alternative. The doctor said, don't panic. You have 4 options: assertive, second one exclamatory, third imperative, fourth interrogative. Now tell me which one would be. Don't panic. What is that? This is an order है, command है ना. तो थर्ड वन imperative. assertive क्या है आपका? assertive और declarative एक ही सेंटेंस है. जो एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस है जो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एक्सक्लेमेटरी तो ऑलवेज एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ही एंड होता है, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट. इंपेरेटिव कमांड भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है. इंटरोगेटिव जो है वो क्वेश्चन वाले होते हैं. सो योर थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ओवर योर imperative. Oh, sorry. Now, one more question is there on the same slide. Read the sentence and recognize its type by choosing the correct option. Bind up the wound with a bandage. So, tell me which one. Exclamatory sentence है, or it is imperative, or interrogative, or assertive. Fourth one, assertive. No. Okay, thank you so much for your answers, but the right answer is here imperative sentences. Okay, this is imperative. Bind up the wound with a bandage. ये यहाँ पे क्या है, एक आपको ऑर्डर ही एक तरीके से कहा जा रहा है कि अपने वुंड को बैंडेज से बाइंड अप करो. ठीक है, सो इट इज imperative. थर्ड वन इज द राइट आंसर.
I hope you have filled the feedback form, and please click on the test links which already has been shared on the chat box. Now next is sentence types. अगर आज हम ये at a glance कर रहे हैं, but throughout the year we'll do these topics in detail. Okay, so simple sentence, compound sentence and complex sentence. Now explaining in a very simple way. Simple sentence which contains only one verb, subject and verb object होता है और predicate होता है. Contains a subject and a predicate, express a complete thought. एक sentence है जो आपको एक complete meaning convey करता है, but उसमें आपको एक ही subject होगा, एक ही predicate होगा, कोई conjunction नहीं, कुछ नहीं. So यहाँ पर the boys went to the park, we like pizza. ठीक है, ये आपके simple sentence है ना. The boys subject है, went है, और to the park क्या है आपका object, और you can say predicate as well. We like pizza, subject verb and object है. ठीक है, compound sentence. अच्छा, compound sentence से क्या होते हैं? More than one sentences would be there in this, but the both sentence are independent sentence. Independent मतलब जो मेन क्लॉज है, मेन सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, विच कन्वेज द क्लियर मैसेज, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी दूसरे सेंटेंस में डिपेंड नहीं कर रहे. तो ऐसे दो सेंटेंसेस दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. तो यहाँ पे देखो कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, these are complex sentence. Only one sentence will be independent and rest all the sentence of clauses will be dependent on it. ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और बाकी सब जो मोर देन वन है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और वो subordinating conjunction के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो. because the boys went to the park, they didn't go to the zoo. The boys didn't go to the zoo because they went to the park. तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग subordinating conjunctions के थ्रू ये कनेक्ट किए गए हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ conjunctions दिए है, subordinating, after, before, because, although, when, since, if, whenever, unless, while, so, that, even, though, wherever. Next. Okay. Choose the correct form of the simple statement. Choose one alternative. Now tell me the answer. The moon rising at the end of their journey. The moon rose before the end of their journey. The moon rose and their journey ended. Their journey ended as the moon rose. यहाँ पर देखो आपके ये तीनों ऑप्शन में क्या है, कंजंक्शन, बिफोर है, एंड है, एज है. आपका जो फर्स्ट है ना, दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट. इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई जॉइनिंग वर्ड नहीं है, एक वर्ब है और एक प्रेडिकेट है आपका, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. द मून राइजिंग एट द एंड ऑफ देयर जर्नी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल स्टेटमेंट. योर ऑप्शन 1. वंदना, ऑप्शन 1. Option 1 is the correct answer. Now next question is, read the following sentence and find out type of sentence. ठीक है, they rested when evening came. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है. ये सिंपल है, यहाँ पे when है तो इट इज नॉट सिंपल. कंपाउंड है, कंपाउंड होगा तो they rested when evening came. सी, ये दोनों सेंटेंस है, दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं है. ये they rested इंडिपेंडेंट है, when evening came, so this is a dependent. So coordinator और complex, तो क्या आ जाएगा, which one? अभी हमने यहाँ पे किया ना, ये चार्ट में देखो, when है और दो है, wherever है, so ये क्या है, complex sentences है. So this, which one would be the correct option? Second one, right, complex sentence. So grammar needs a lots of practice. ठीक है, आपको ग्रामर थरा करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है. तो आपके पास जो टेस्ट लिंक्स है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइजेस, प्लीज सॉल्व इट. इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द ग्रामर टॉपिक्स. यहाँ पे देखो कॉमन एरर है, आइडेंटिफाइंग सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स.
टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस. कभी भी ये नहीं सोचना है कि कॉम्प्लेक्स है तो बहुत बड़ा ही सेंटेंस होगा. अभी देखो हमने ये सेंटेंस कितना छोटा था, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, ठीक है, बट ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है. तो कभी भी डोंट मेक दिस मिस्टेक. सी आइडेंटिफाइंग सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ हिंट्स है विच हैज बीन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन स्लाइड. ऑलवेज चेक द नंबर ऑफ वर्ब्स यूज्ड. अगर एक वर्ब दिया है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो वो आपका सिंपल होता है. सिंपल हैज नो कंजंक्शन. सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं है, ठीक है. दो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, सेंटेंस होते हैं जिसको आप बट से, एंड से, ऑल से कनेक्ट करते हो. और अगर मोर देन वन वर्ब है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी एक सेकेंड, सिंपल हैज नो कंजंक्शन सच एज एंड, व्हेन, व्हाइल, विच, ये सारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो जाते हैं. और यहाँ पर है मोर देन वन वर्ब प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कंपाउंड है, ठीक है. Okay, so we are running out of time now. So I'll continue in the next session. Whatever slides are remaining और जो topics हमने सिर्फ brief देखे हैं हम उसके details भी करेंगे throughout the year. Thank you so much students for your responses. I hope you have filled the feedback form and please click on the test link which has been already shared on the group. Thank you so much. Bye. अच्छा